Welcome to Macmo Academy. Dear students, in this video, we are starting the chapter 12 Sound, and the first topic is sound waves. The essay note that we will cover first is the production of sound waves. So, first of all, what is mean by sound? So, as it is written, sound waves. So, sound is a form of mechanical energy that is produced. It is a form of mechanical energy that is produced by vibrating objects. Now, as you know that when we talk about vibrating objects, so they will move back and forth, and due to this motion, they will transfer the energy, and we call it mechanical energy, and it requires medium for its propagation or traveling. If it want to move, so it requires a medium. So this is the definition of sound. For example, a vibrating guitar strings. So the guitar sound produces due to the guitar strings. I am speaking in this video. It's due to the vocal cords and they are vibrating so that my sound will produce. So how a sound wave produce? How a sound wave produce? Let's discuss sound wave. So the setting is very simple, that whenever the particles start vibrating, due to the vibration there will be disturbance of particles, and due to this disturbance of particles, compression and rarefaction occurs. And we have already discussed in characteristics of waves that what is mean by compression and rarefaction. And by the compression and rarefaction, actually sound wave produce. So it is a longitudinal wave. It is a longitudinal wave because it consists of compression and rarefaction. So one thing which is very important over here, that it is written, it is produced due to the vibrating objects, means the particles are vibrating and then they are producing the compression and rarefaction, and the sound wave is generated. One thing which is very important over here is the particles of the medium do not travel. Actually, they just do back and forth motion. The particles, for example, if a guitar is producing the sound, but we are able to hear it. Why? Because actually the vibrations of the particles
moving the energy from one place to another place, and we are getting that energy, sound energy, and we are able to hear it. So actually the particles are not traveling. Particles, this is a very important misconception that students think that actually the particles are moving. So it's not like this. Particles of the medium do not travel. Particles of the medium do not travel from the source to the listener. जो आपकी source है, for example the guitar is the source and we are the listener, so particles जो हैं वो source से listener पे नहीं जाते. Then what happened? They oscillate about mean position. They oscillate or vibrate about their mean position, back and forth movement. And transfer energy from one particle to another. That's how it works. So remember, जब हम बात करते हैं साउंड एनर्जी की, तो पार्टिकल्स सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहे होते हैं. ऐसा नहीं है कि वो जो है वो पार्टिकल, एक पार्टिकल उठ के सोर्स से जाएगा लिसनर के पास और लिसनर उसको सुन सकेगा. नहीं, पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट होते हैं अपनी मेन पोजीशन पे और एनर्जी को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे ट्रैवल करते हैं और वो एनर्जी एक से दूसरे पे जाते जाते पहुंच जाती है आगे तक. तो इसकी एग्जांपल ये, तो फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट ए है, मुझे यहाँ से कोई चीज़ लेके जानी है पॉइंट बी तक. ठीक है, ये चीज़ मुझे पॉइंट बी तक लेके जानी है. तो मैंने जो है वो गाड़ी में उसको लोड किया और ट्रैवल करवा के लेके चला गया पॉइंट बी तक. लेकिन इसमें गाड़ी भी साथ जाएगी, इसमें गाड़ी भी यहाँ तक साथ जाएगी. राइट. लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा. इसमें ये हो रहा है कि एक गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी मौजूद है, दूसरी के साथ तीसरी गाड़ी मौजूद है, तीसरी के साथ चौथी गाड़ी मौजूद है. या फिर इसको ऐसा समझ लें कि 10 लोग एक साथ खड़े हुए और वो सिर्फ पासिंग द पार्सल कर रहा है. एक बंदा नहीं है जो पार्सल को लेके जाके डिलीवर कर रहा है दूसरी जगह पे. नहीं, ऐसा नहीं है. बल्कि जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ एनर्जी को पासिंग द पार्सल कर रहे हैं और सोर्स से लिसनर पे लेके जा रहे हैं. तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे यही समझते हैं कि शायद पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं. नहीं, पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक पार्टिकल से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, और एट दी एंड लिसनर तक पहुंच जाती है. सो दिस इज़ हाउ द साउंड वेव्स प्रोड्यूसेस. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एसएलओ ऑफ दिस टॉपिक. तो हमारा जो पहला एसएलओ था, हमने उसमें ये एक्सप्लेन किया कि कैसे साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, पार्टिकल्स कैसा बिहेव करते हैं, किस तरह से एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं. जो सेकेंड एसएलओ है इसका 12.1.2, उसमें हमें ये एक्सप्लेन करना है sounds cannot travel from media, from a vacuum, cannot travel or cannot, sound waves cannot travel in vacuum. So do you know about vacuum? What is mean by vacuum? वैक्यूम ऐसी जगह होती है जहाँ पे हवा नहीं होती, यानी पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते. तो जब हम बात करते हैं साउंड वेव्स की प्रोडक्शन की, अभी हमने देखा तो उसमें तो एक्चुअली पार्टिकल्स ही ट्रैवल कर रहे थे. लेकिन अब आपको पता है कि जब पार्टिकल्स ही नहीं मौजूद होंगे तो फिर एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होगी. तो जब एनर्जी ट्रांसफ़र ही नहीं होगी तो हाउ द साउंड वेव विल प्रोड्यूस और विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर.
So that is mean what is a vacuum? A region in which there are no particles of matter. तो पहले तो ये समझ लें कि वैक्यूम क्या होता है. A region, a place, or an area in which there are no particles. There are no particles of matter. So sound is a mechanical wave. हमने डिस्कस कर लिया. Sound is a mechanical wave. It requires particles of medium. So if there are no particles, no sound waves can travel. It requires particles of a medium. So these are very important points that you need to remember, so you can copy down it. So actually, as we have already discussed, that जब हम बात करते हैं साउंड वेव्स की प्रोडक्शन की, तो एक वाइब्रेटिंग सोर्स होती है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं. तो नो पार्टिकल्स, जब कोई पार्टिकल्स ही नहीं होंगे वैक्यूम में, नो वाइब्रेशन, कोई वाइब्रेशन ही नहीं होगी, क्योंकि वाइब्रेशन होती ही पार्टिकल्स की है. जब नो वाइब्रेशन होगी, कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी. तो फाइनली आपके पास साउंड भी नहीं होगा, नो साउंड प्रोपगेशन. और इसके लिए एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है कि एक बैल को एक जार में लगाया जाता है. फॉर एग्जांपल एक जार है, उस जार के अंदर जो है वो बैल को लगाया जाता है. जो हमारे घर के अंदर बैल होती है, डोर बैल होती है, डोर बैल होती है, उसको एक जार के अंदर लगाया जाता है और फिर उसको जो है वो रिंग किया जाता है, तो उसकी आवाज़ बाहर आती है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है ना वो वैक्यूम पम्प के थ्रू उसमें से सारी एयर जो है वो सक कर ली जाती है और ये जो है वो एक तरह का वैक्यूम मीडियम बन जाता है, यानी वैक्यूम हो जाता है. देयर इज़ नो पार्टिकल. तो फिर जब बैल को रिंग किया जाता है तो आवाज़ बाहर नहीं आती. इसका मतलब ये हुआ कि जो बैल जार एक्सपेरिमेंट है वो इस बात को प्रूव करता है. इसके अलावा भी और एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट. तो जब आपके पास वैक्यूम होगा, यानी कोई मीडियम नहीं होगा, तो वाइब्रेशन भी नहीं होगी और एनर्जी ट्रांसफ़र भी नहीं होगी. इस वजह से साउंड वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस भी नहीं होंगी, या फिर ये कह सकते हैं कि साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकेंगी वैक्यूम के अंदर. सो दैट्स what it means that explain that sound waves cannot travel in vacuum. Now let's move to the next SLO. अब जो हमारे पास SLO है ये बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्पॉर्टेंट SLO है. Its certain speed of sound depends on physical characteristics of medium. इसका मतलब ये है कि हर मीडियम में साउंड एक जैसा ट्रैवल नहीं करता, क्योंकि साउंड की जो ट्रैवलिंग है वो डिपेंड करती है पार्टिकल्स पे. और आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के अंदर टाइटली पैक होते हैं, लिक्विड के अंदर थोड़ा सा लूज पैक होता है, और गैस के अंदर बहुत ही दूर दूर होता है. तो इसकी वजह से सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में, लिक्विड ऑब्जेक्ट्स में या गैस ऑब्जेक्ट्स में जो है वो जो साउंड की स्पीड है वो वेरी करती है, एक जैसी नहीं होती. तो इसका मतलब जो साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड वो डिपेंड करती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम पे. इसमें स्पेशली जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम दो प्रॉपर्टीज़ की या कैरेक्टरिस्टिक्स की. इसमें एक है इलास्टिसिटी.
ये सारी चीज़ें पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। और दूसरी है डेंसिटी। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम। तो अगर हम जनरली बात करें तो नॉर्मली जो सॉलिड है सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड में होती है, उसके बाद जो है वो लिक्विड में होती है, और मैंने आपको अभी बता दिया पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की वजह से। और एट दी एंड सबसे जो स्लो स्पीड होती है सबके मुकाबले में वो गैस में होती है। तो जो एक बड़ी कॉमन वैल्यू है साउंड की, जो कि हम कहते हैं कि हवा में जो साउंड की ट्रैवलिंग है जिसको हम कहते हैं एयर में, उसकी वैल्यू ज़्यादातर यूज़ होती है 343 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम इसी स्पीड बात करें वाटर में, वाटर इज़ लिक्विड, तो वाटर के अंदर जो है वो स्पीड होती है 1480 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम एक एग्जांपल लें सॉलिड की, यानी स्टील ऑब्जेक्ट्स, तो उसके अंदर जो साउंड की स्पीड होती है वो तकरीबन 5000 मीटर पर सेकेंड होती है। तो यू कैन सी द डिफरेंस कि गैस के अंदर कितनी कम स्पीड होती है, वाटर यानी लिक्विड के अंदर उससे ज़्यादा होती है, और स्टील यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में तो बहुत ज़्यादा ही होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न वही है कि वाई द स्पीड ऑफ साउंड इज़ ग्रेटर इन सॉलिड्स। इसका रीज़न यही है दैट सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। तो इसका अगर आपको रीज़न समझना हो तो आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ या फिर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये आपको ऑलरेडी पता है कि कैसी अरेंजमेंट होती है। और यही रीज़न है कि सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैस में सबसे कम होती है। सो आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और जब आपके पास वैक्यूम होता है तो साउंड जो है वो वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड वेव्स जो है वो पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, और जब पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती, एनर्जी ट्रांसफ़र ही नहीं होगी। और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड करती है फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम, जिसके अंदर हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन ये इलास्टिसिटी और डेंसिटी ऑफ द मीडियम मैटर करती है। यानी ये तब आती है जब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट सॉलिड है, दूसरा भी सॉलिड है, सॉलिड वन सॉलिड टू, अब हो सकता है ये ज़्यादा डेंस हो, तो अगर डेंस पार्टिकल होगा तो उस हिसाब से वाइब्रेशन होगी पार्टिकल्स की, लेस डेंस होगा तो उसकी वाइब्रेशन उसके हिसाब से होगी। तो इस वजह से डेंसिटी और इलास्टिसिटी भी डिपेंड करती है। इसके अलावा सॉलिड पे सबसे ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की, लिक्विड पे उससे कम होती है, और गैस में सबसे कम होती है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और उसके बाद वाली वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क अस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।